Okay. Good morning, everyone. Now, in the previous lecture, we completed all the three rights. Correct? याद है आपको right of lien, stoppage and resale, है ना? Okay. Yes. So today we are starting with rights of unpaid seller against buyer personally. Okay. तो देख लो एक बार ये. So if you see, if speaking of unpaid seller, he has certain rights. Correct? Now rights are of two types. एक है rights in rem, rights in personam. Correct? So rights in rem speak about those rights which are against whom? Against goods. And rights in personam speak about those rights which are against the buyer personally, है ना? क्योंकि यहां पर अनपेड कौन है? अनपेड इज द सेलर. ठीक है. सो इस केस में सेलर इज द सफरिंग पार्टी. तो जो राइट्स होंगे वो राइट्स किस लिए होंगे? राइट, राइट्स विल बी अगेंस्ट. ये जो वर्ड है ना यहाँ पर अगेंस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट. Okay, because in this case the seller becomes the suffering party and buyer is the defaulting party. चाहिए तो लिख लो, seller is the suffering party and buyer is the defaulting party. तो ये जो rights होंगे ना, उनका starting क्या होगा? Against goods and against buyer. ठीक है. तो अभी last lecture में we had completed against goods वाला, right? We completed rights in rem. Now we will start with rights in personam, that is rights against the buyer personally. है ना? Okay. So you can write down the seller is the suffering party, buyer is the defaulting party. So that confusion na ho that these rights are used against whom. Now, one thing also before we start reading, ऐसा नहीं है कि अगर आप राइट्स इन रेम यूज कर रहे हो तो आप राइट्स इन पर्सोनम यूज नहीं कर सकते हो. सो राइट्स इन पर्सोनम दीज आर एडिशन टू राइट्स इन रेम. यहां पर कोई वर्ड और नहीं लिखा है कि इफ यू यूज द राइट्स विच आर गिवन इन राइट्स इन रेम तो आप राइट्स इन पर्सोनम वाले राइट्स यूज नहीं कर सकते हो. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऑप्शन दिया गया है ईदर दिस और ईदर दैट, है ना? सो राइट्स इन पर्सोनम आर बेसिकली एन एडिशनल राइट विच इज गिवन टू द सेलर. ठीक है, ये यहाँ पर लिखा भी होगा, सो आप अंडरलाइन कर लेना. Okay, let's read. Rights of an unpaid seller against buyer personally, right? Because now what are we studying? We are studying rights in personam. और personam का मतलब क्या होता है? Against the buyer personally. Let us read. These rights of the seller are against the buyer and called as rights in personam. That is against rights in rem. क्योंकि rem speak about against goods and personam speak about rights against the buyer personally. ठीक है. हाँ, देखो अभी लिखा है यहाँ पर, यू कैन अंडरलाइन, एंड दे आर इन एडिशन टू हिज राइट्स अगेंस्ट गुड्स. तो ये यहाँ पर इंटरप्रिटेशन वाली बात होती है कि ऐसा नहीं है दैट वंस यू यूज राइट इन रेम यू कैन नॉट यूज राइट इन पर्सोनम. ठीक है, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन मैच कर सकते हो. मतलब अनपेड सेलर के पास बहुत सारे रेमेडीज अवेलेबल हैं. So these rights, these four rights which are given over here, these are just an addition to the previous rights. ठीक है, अब आगे लिखा है the rights in personam are as follows. देखो, suit for price. अब suit for price में, that is section 55, you have been given two different points. Okay, that means two different cases. ठीक है, तो अब आपको learn कैसे करना है these two different cases. तो you can make a heading. क्या हेडिंग दोगे?
you can write where property has been passed, और सेकंड केस का हेडिंग क्या है, where property has not passed. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स का हेडिंग है, ऐसे आपको लर्न होगा. दिस इज जस्ट आई एम सेइंग दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न द 2 पॉइंट्स. ओके, अब what is the meaning of the word property? So we will write down, we have already seen this. The word property in Soga means ownership. Correct? बहुत बार हमने ऐसा देखा है that while they speak of the word property, they are trying to make use of the word ownership. या हम इसको कभी कभी word title भी कहते हैं, transfer of title. तो transfer of what? Transfer of ownership. तो कभी कभी property भी यूज किया जाता है, कभी कभी the word title is also used. But both these two terms exactly mean the word ownership. ठीक है, कभी कभी ओनरशिप वर्ड डायरेक्टली यूज नहीं किया गया होगा, द वर्ड प्रॉपर्टी इज गिवन, बट आपको उसे इंटरप्रेट क्या करना है कि यहाँ पर ओनरशिप की बात चल रही है. या अगर वर्ड टाइटल दिया होगा तो व्हाट यू हैव टू इंटरप्रेट दैट दे आर स्पीकिंग ऑफ ओनरशिप. ठीक है, सो सिमिलरली इवन इन दिस केस, तो हेडिंग क्या है फर्स्ट केस का, वेयर प्रॉपर्टी हैज पास्ड. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है. Yes, where the property has passed and the buyer, देखो यहां से अंडरलाइन करो, buyer neglects to pay for the goods. मतलब यहाँ पर अगेन डिफॉल्टिंग पार्टी कौन बन गया, बायर बन गया, राइट, बिकॉज यहाँ पर लिखा है एंड दैट टू दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, द बायर wrongfully neglects or refuses to pay for the goods. द वर्ड wrongfully इज इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल कर लो. Buyer is neglecting but also is wrongfully neglecting to pay for the price of the goods, then in that case the seller will sue him for the price of goods. Simple सी बात है. तो this is section 55 subsection 1. ठीक है, और जो case 2 है that is section 55 subsection 2. okay, you don't need to learn this, but एक बार अगर पढ़ भी लेते हो तो भी ठीक है. ओके, तो लिखा क्या है फर्स्ट केस में कि जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, तो अब बायर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दैट ही हैज टू पे टू द सेलर. करेक्ट, बट ही इज रॉन्गफुली निग्लेक्टिंग टू पे. तो उस केस में व्हाट विल दिस सेलर डू, व्हाट इज द रेमेडी व्हिच इज अवेलेबल विद द सेलर, द सेलर विल स्यू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स. करेक्ट. और नेक्स्ट पॉइंट में देखो, जहां पर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है उस केस में देखो क्या होगा, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, where under a contract of sale the price is payable on a certain day irrespective, यहां से इंपॉर्टेंट है the word irrespective of delivery and, अच्छा चलो हम इस यहां तक इंटरप्रेट करते हैं, इसका कहने का क्या मतलब है. so there is an agreement between the seller and the buyer. ठीक है, ये ध्यान से सुनना, there is a already existing agreement between the seller and the buyer. ठीक है, और ये अग्रीमेंट में लिखा है that buyer will pay the seller, the buyer will pay the seller on 1st of Feb, on 1st of Feb. मतलब अग्रीमेंट में आपने डेट ऑफ पेमेंट फिक्स कर दी. क्या कर दी आपने, डेट ऑफ पेमेंट इज फिक्स्ड, राइट. इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डाउन. सेलर एंड बायर के बीच में जो अग्रीमेंट बना है उसमें लिखा है दैट बायर विल पे द सेलर, द बायर विल पे द सेलर ऑन 1st of Feb. okay, that means the date of payment has been fixed. अब सुनो, अब यहां पर जो डेट ऑफ पेमेंट लिखी है, ओके, इसके जो सेंटेंस होगा, क्या सेंटेंस फ्रेमिंग होगा, द बायर विल पे द सेलर ऑन 1st of Feb. ओके, अब बस इतना ही सेंटेंस है, ऐसा आगे नहीं लिखा है that only if the seller delivers the goods, ये नहीं लिखा है. that means date of payment is independent. correct, date of payment होना या ना होना does not depend upon any event, right. so इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि पेमेंट होगा provided the seller delivers the goods to the buyer, right. So the date of payment is independent clause. It is not dependent upon any event.
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, दैट जहां पर डेट ऑफ पेमेंट इज फिक्स्ड, ओके देखो इट इज रिटन ओवर हियर दैट इट इज सर्टेन, द प्राइस इज पेएबल ऑन अ सर्टेन डे, राइट। अभी जो हमने एग्जांपल लिया वहां पर क्या लिखा हुआ था, दैट डेट ऑफ पेमेंट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव, मतलब वहां पर वो जो क्लॉज है ना दैट इज इंडिपेंडेंट, वो किसी इवेंट पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज किया गया है, इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी हो ना हो डेट ऑफ पेमेंट वहां पर फिक्स्ड है, ठीक है। तो बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू पे फॉर द प्राइस फॉर द गुड्स ऑन दैट रिस्पेक्टिव डे, करेक्ट। सपोज 1 Feb आज है, तो बायर को जाके सेलर को पेमेंट कर देनी है, बायर को ये सोचते बैठना नहीं है कि भाई ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुई है मुझे, है ना, या मुझे गुड्स की डिलीवरी तो नहीं मिली है, तो मैं क्यों जाके पेमेंट करूं। तो जब ये आपने अग्रीमेंट बनाया था ना तब आपको सोचना चाहिए था, राइट। So, but if an agreement has already been made, a clause has already been added, and that particular clause relates to the date of payment, which is independent, okay, which is not dependent upon any event, correct. So in that case the buyer is liable to pay, and if the buyer refuses to pay, तो देखो आगे क्या है, so irrespective of delivery and उसके बाद if the buyer wrongfully neglects to pay such price, so the seller may sue him for price. अब ये जो लास्ट लाइन है इसे हाईलाइट करो, it makes no difference even if the property has not passed and the goods have not been appropriated. क्यों, क्योंकि जो डेट ऑफ डिलीवरी है ना, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स इंडिपेंडेंट, so whether the property has been passed or whether the delivery has been made to the buyer, that makes no difference, okay, because these two events are immaterial when we speak of the date of payment. So in short आप देख क्या रहे हो कि दोनों केसेस में, be it 55 subsection 1 or 55 subsection 2, in both the cases the seller gets the remedy to sue the buyer for what, remedy क्या है, sue the buyer for price, ठीक है। So this is the conclusion of both the cases. And how are the two cases different? In one case the property has already been passed, in the next case the property has not been passed, but the date of payment is fixed, ठीक है। आपको ऐसे लर्न करना है हेडिंग। So this is suit for price section 55, and this is the first right in rights in personam, and these rights are additional rights given to the unpaid seller, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेक्शन 56 सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अच्छा ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया था नॉन एक्सेप्टेंस वाला। नाउ इफ यू रिमेंबर आई यूज्ड टू गिव यू दिस एग्जांपल दैट सपोज सेलर इज रेडी टू गिव द डिलीवरी फॉर द गुड्स, ठीक है, सेलर जाता है बायर के घर पे, ठीक है। अब बायर पर्पसली दरवाजा नहीं खोल रहा है ना, पता नहीं क्या है, या जब भी सेलर जाता है बायर घर पर ही नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज अ लॉक, okay, so seller has tried to deliver the goods but buyer has always been unavailable for accepting the goods, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, the buyer is not accepting the goods, maybe purposely, intentionally, unintentionally, we are not speaking of that, but यहाँ पर acceptance हो ही नहीं रहा है डिलीवरी का, and seller just does not have one work, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं है कि भाई ये बायर के घर पे गुड्स पहुंचाना है, तो भाई ही हैज केप्ट सम पर्सन, वो बायर के दरवाजे पर ही रुका है कि बस जैसे ही बायर आएगा उसको गुड्स दे देगा, राइट। सो बस एक ही काम नहीं है, राइट। So it has been repetitively been seen that buyer has been unavailable, or even if it's he's available, he is not accepting the goods, okay। और ऐसा भी नहीं कि सेलर की गलती है या उसने कोई wrongfully goods डिलीवर किया something like that, सेलर ने जो भी गुड्स हैं वो राइटफुली डिलीवर किए हैं, जो बायर ने ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंग ही डिलीवर किए हैं, बट फर्स्ट पॉइंट है कि बायर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में कहीं ना कहीं सेलर का घाटा हो जाता है। सो दिस राइट गिव्स द रेमेडी टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द बायर फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स, ठीक है। देखो वेयर द बायर wrongfully, अगेन यहाँ पर वर्ड क्या दिया हुआ है, wrongfully, तो दैट मीन्स इट इज समवेयर दे आर स्पीकिंग ऑफ इंटेंशनली एक्सेप्ट ना करना, है ना।
So where the buyer wrongfully neglects to refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for non-acceptance. ठीक है, और इसमें आप क्या कर लोगे फिर? You will recover damages, क्योंकि इसमें again who is the defaulting party? The buyer, right? So this is all about it. Section 56 में बस इतना ही दिया है. Next देखो Section 60, repudiation of contract before due date. Again we have also already seen this point कि जहां पर अब सपोज ये सेलर है बायर है, ठीक है, इन दोनों का जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट होने वाला है 1st ऑफ फेब को, ठीक है. अब 1st ऑफ फेब आने से पहले ही सपोज कहीं ना कहीं एक 21 जैन को सेलर ने सॉरी बायर टोल्ड द सेलर, बायर ने ये एक्सप्रेस कर दिया कि तुम मुझे गुड सेल मत करना क्योंकि मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं है. कब बोला बायर ने सेलर को? बायर ने 21 ऑफ जैन को सेलर को ये कहा दैट डू नॉट गिव मी द गुड्स बिकॉज आई एम अनेबल टू पे. तो उसने डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आने का वेट ही नहीं किया, उसके पहले ही सेलर को इन्फॉर्म कर दिया दैट लेट अस नॉट एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, डू नॉट गिव मी द गुड्स बिकॉज आई एम अनेबल टू पे. ठीक है, तो ये बायर ने सेलर को ऑलरेडी बता दिया, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आने से पहले ही उसने सेलर को इन्फॉर्म कर दिया. सो व्हाट डज दिस टाइटल मीन? लेट अस रीड इट अगेन. रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहां पर बायर रेप्यूडिएट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द ड्यू डेट, मतलब उसने ड्यू डेट का इंतजार भी नहीं किया और उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया. ठीक है, सेक्शन 60. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, इट इज ऑलवेज बीन सेम. दिस इज ऑल्सो इन द यूनिट नंबर 3. देखो, वेयर द बायर repudiates the contract. यहाँ पर repudiate का मतलब क्या होता है? You have already seen the word repudiation means, ये हमने अगेन यूनिट 3 में पढ़ा है, cancel, right? repudiate का मतलब क्या होता है? cancel करना. So क्या लिखा है? where the buyer repudiates the contract before the due date of delivery, the seller has two options, है ना? तो जो repudiate करता है, ओके, तो जो अदर पार्टी होता है उसके पास हमेशा दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट देखो, either treat the contract as subsisting, मतलब क्या? either treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery. मतलब इस केस में ना सेलर रुकेगा. till when will he wait? He will wait till 1st of Feb, that is the due date of the contract. ठीक है, so seller is waiting और वो ऐसा समझता है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी कंटिन्यूएशन में है. ऐसा नहीं है कि सेलर को पता नहीं है that the buyer has repudiated the contract. The seller knows, the seller is aware that buyer wants to cancel the contract or buyer has already cancelled the contract even before the due date. ठीक है, so seller in this case, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, unpaid seller in this case has दो options है उसके पास, जिसमें से first option क्या है? The unpaid seller will keep on waiting till the occurrence of the due date. मतलब ड्यू डेट तक अनपेड सेलर ऐसे पकड़ के चलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी कंटिन्यूएशन में है. दिस इज ऑप्शन नंबर 1. और ऑप्शन नंबर 2 विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, लाइक प्रैक्टिकली सीन. और ऑप्शन नंबर बी क्या है? ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड, मतलब सेलर भी इसे अब कैंसिल मानेगा एंड द वर्ड एंड इज गिवन एंड sue फॉर डैमेजेस. मतलब यहाँ पर सेलर का अगेन नुकसान तो हो जाता है बिकॉज ही हैड ऑलरेडी एंटर्ड, ही वाज ऑलरेडी इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर. ठीक है, तो उसने कहीं ना कहीं ऐसे अज्यूम कर लिया होगा कि ड्यू डेट पर, दैट इज ऑन 1st Feb, मैं बायर को गुड सेल करूंगा और बायर मुझे पैसे दे देगा. तो कहीं ना कहीं उसने अपने बुक्स में एक एंट्री कर दी थी ऑफ कैश रिसीवेबल, राइट? उसने कहीं ना कहीं बायर को डेटर बता दिया था अपने बैलेंस शीट में, तो अब वापस उसे एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी. एंड ऑल्सो ही हैज सफर्ड अ लॉस. अगर उसे पता होता दैट दिस बायर इज नॉट रेडी और इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द गुड्स, तो वो कोई और बायर को ढूंढता who was actually willing to purchase the goods and pay for the price. ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है?
अनपेड सेलर भी ऐसे मानेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड है। ओके, कब मानेगा? 21 जैन को ही, जब बायर ने उसे बता दिया कि भाई आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म माय पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अनपेड सेलर के पास सेकेंड जो ऑप्शन है वो ये है दैट इवन ही विल कंसिडर दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैंसिल्ड, ओके, एंड ऑल्सो ही कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द बायर। ठीक है, सो दीज आर द टू ऑप्शंस, जिसमें से ऑप्शन जो सेकेंड वाला है दिस इज मोर प्रैक्टिस्ड। ठीक है, ऑप्शन 1 हार्डली को यूज करेगा। तो जब पता है कि बायर ने ऑलरेडी रेप्यूडिएट कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, सो देन इट मेक्स नो सेंस टू कीप ऑन वेटिंग। ठीक है, अच्छा, रीजन ये भी है कि भाई सेलर क्यों वेट करेगा जब उसके पास इतना अच्छा ऑप्शन है कि भाई तुम भी ऐसे समझो कि कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैंसिल्ड और अच्छे खासे डैमेजेस रिकवर कर लो, राइट? सो देन हु विल प्रैक्टिस ऑप्शन 1 when option B is so attractive? So the reason is that the seller keeps on thinking कि हो सकता है ड्यू डेट आने तक buyer is able to pay, तो बेटर है कि भाई तुम यही बायर को सेल करो। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे देयर इज अ पिंच ऑफ अ होप फ्रॉम द बायर। ठीक है, तो अनपेड सेलर होप करेगा कि ड्यू डेट आने तक हो सकता है कि बायर के पास अच्छा खासा कैश हो सो दैट ही कैन पे मी, है ना? दैट्स इट, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है कि ही विल प्रैक्टिस ऑप्शन 1। ठीक है, बिकॉज इट मेक्स प्रैक्टिकली नो सेंस टू वेट। ओके, एंड द लास्ट वन इज सूट फॉर इंटरेस्ट, दैट इज सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज ए। ठीक है, देखो सूट फॉर इंटरेस्ट मतलब क्या, सिंपल सी बात है, अगर बायर वाज लायबल टू पे द सेलर on 1st of Feb, but he actually pays the seller, ये होगा ड्यू डेट। ड्यू डेट किसका? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, बट एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट इज ऑन 1st of March। ठीक है, ड्यू डेट कब होना था पेमेंट? 1st Feb को, बट एक्चुअली में डेट ऑफ पेमेंट क्या था? 1st of March। तो यहाँ पर 1 महीने का गैप था, 1 महीने का डिले हो गया। तो जब बायर इसे एक्चुअली पे करेगा सेलर को, सो ही विल नॉट ओनली पे, तो जब 1st of March को व्हेन द बायर विल गो एंड पे द सेलर, तो क्या क्या पे करेगा? एक तो प्राइस पे करेगा गुड्स का, ये तो ऑब्वियस है, प्लस ही विल ऑल्सो पे द इंटरेस्ट फॉर डिले बाय 1 month। तो ये डिले ऑफ पेमेंट कहां से कब तक काउंट करना है? जो ड्यू डेट है पेमेंट का, वहां से लेके जब पेमेंट एक्चुअली हुआ था वहां तक जितना भी गैप आता है, व्हाट एवर इज द गैप पीरियड, उतने दिनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसे? बायर को। ठीक है, बायर हैज टू पे द इंटरेस्ट अमाउंट टू द सेलर, और इंटरेस्ट अमाउंट कहां से कहां तक गिना जाएगा? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, पढ़ लो क्या लिखा है सूट ऑफ इंटरेस्ट में, रीड इट ऑन योर ओन, इजी वाला पॉइंट है। When there is a specific agreement between the seller and the buyer as to the interest on the price of goods from, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, आपको टाइमलाइन दी गई है, from the date on which payment becomes due, that is the due date of payment, correct? Becomes due, the seller may recover interest from the buyer. Okay, if however there is no specific agreement to this effect, the seller may charge interest on the price when it becomes due from such day as he may notify to the buyer. ठीक है, so first para in short is trying to say कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जब बायर के साथ अग्रीमेंट कर दिया, वो अग्रीमेंट के ही अंदर आपने एक और क्लॉज ऐड कर लिया रिलेटिंग टू इंटरेस्ट। तो ये अग्रीमेंट में जो इंटरेस्ट का रेट होगा ना, परसेंटेज, तो कई बार अग्रीमेंट में फिक्स्ड होता है, तो गो अकॉर्डिंग टू दैट। एंड इफ इट इज नॉट फिक्स्ड, अगर आपने अग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है कुछ इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि जब आप अग्रीमेंट बना रहे थे तो आपने ऐसा सोचा ही नहीं कि हो सकता है कि डिले भी हो जाए बायर की तरफ से। सो many a times there will be a clause mentioned. If there is a clause mentioned, then act accordingly, and if there is not
if there is no clause mentioned in the agreement, then after that, when there is a delay, then seller and buyer will mutually decide the interest rate and from when up till when. ठीक है. और जो second paragraph है वो important है, वो देख लो. या इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, द कोर्ट में अवार्ड. तो इस केस में जहां पर आपने कोई अग्रीमेंट ही नहीं बनाया था, है ना, तो उस केस में फिर आप किसका हेल्प लोगे? यू विल सीक द हेल्प ऑफ द कोर्ट. तो क्या लिखा है? द कोर्ट में अवार्ड इंटरेस्ट टू द सेलर इन अ सूट बाय हिम एट सच रेट एट इट एज इट थिंक्स फिट. एज इट कौन है? कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर. एज इट थिंक्स फिट ऑन द अमाउंट ऑफ प्राइस from the date of tender of goods or from the date on which the price was payable. तो मतलब कौन सा डे कोर्ट कंसिडर करेगा? जिस दिन गुड्स की डिलीवरी हुई थी बायर को और जिस दिन पेमेंट ड्यू हुआ था. ओके, तो फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वाज पेबल. सो टेक्निकली देखोगे तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा एक्सरसाइजेबल है? दैट इज फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वॉज पेबल. ठीक है, ये ज्यादा करके लिया जाता है. ठीक है, जिस दिन ड्यू डेट था प्राइस पे करने का. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. राइट्स ऑफ पार्टीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अब सुनो, यहां पर ये जो हमने ऊपर राइट्स पढ़े थे, अब डिफरेंस सुनना. यहां पर डिफॉल्टिंग पार्टी कौन था? बायर. ये अगर आपको समझ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में. यहाँ पर डिफॉल्टिंग पार्टी कौन था? बायर. यहाँ पर ये वाले कंसेप्ट में डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है? सेलर. यहाँ पर डिफॉल्टिंग पार्टी, जो अब हम ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हु इज द डिफॉल्टिंग पार्टी? द सेलर इज द डिफॉल्टिंग पार्टी. हेंस द राइट्स विच विल बी अवेलेबल ओवर हियर, the rights which will be available over here, it will be for whom? It will be for the buyer. Because if the defaulting party is the seller, तो यहाँ पर जो भी rights listed होंगे, ये जो rights होंगे वो किसके फेवर में होंगे? It will be in the favor of the buyer. Correct? So बस आपको ये समझना है. If you want, you can write this down in your book also at the start of both the titles. ठीक है, so these are the rights which are available in favor of the buyer. Okay, chalo, let us read these ones. क्या लिखा है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर. ये हेडिंग दिया हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर. मतलब यहाँ पर डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है? सेलर. ऐसे चाहिए तो एरो करके लिख लो. वेयर देयर इज अ ब्रीच बाय द सेलर, हेंस द सेलर बिकम्स द डिफॉल्टिंग पार्टी. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर आपको डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं. देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, ये तो सबको पता है. यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट्स हैं. तीनों पॉइंट्स का हेडिंग क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर. थर्ड पॉइंट का भी हेडिंग क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर. ठीक है, अब ये वाला जो है ना कॉलम, यहाँ पर उन्होंने रीजन बताया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर कब हुआ, कैसे हुआ. देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, पॉइंट 1, वेयर ही फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन अ मैनर प्रिस्क्राइब. तो यहाँ पर सेलर की तरफ से गलती तो हुई है, बट किस प्रकार की गलती हुई है? दैट ही हैज फेल्ड टू डिलीवर द गुड्स. दिस इज फर्स्ट ब्रीच. सेकंड, ऐसा भी हो सकता है that there is a breach of contract by seller where he repudiates the contract. मतलब यहाँ पर सेलर ने मना किया बायर को कि भाई मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैंने जो बनाया था वो मैं अब कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास गुड्स का स्टॉक ही नहीं है ना. तो आई डोंट हैव द स्टॉक, तो मैं ड्यू डेट पर तुझे सेल क्या करूंगा. सो यहाँ पर हु इज repudiating the contract? The seller is repudiating the contract. And point number 3 देखो, breach of contract by seller where delivery
नॉन कंफर्मिंग गुड्स एंड द बायर रिजेक्ट्स एंड रिवोक्स एक्सेप्टेंस। मतलब क्या कि जो बायर ने गुड्स डिलीवर किए हैं, ये है सेलर, ये है बायर, तो जो सेलर ने बायर के घर पे गुड्स डिलीवर किए हैं, दोज गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द बायर्स डिस्क्रिप्शन, those goods are not according to the buyer's description। तो इसलिए देखो, पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पर रीजन के कॉलम में, डिलीवरी हुई है बट इट इज नॉन कंफर्मिंग गुड्स। जो गुड्स डिलीवर किए हैं ना सेलर ने बायर के घर पे, दोज गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन विच वाज गिवन बाय द बायर। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीवरी हुई है, फर्स्ट वर्ड क्या है, डिलीवर, नॉन कंफर्मिंग गुड्स। और उसके बाद हुआ क्या है, बायर ने वो गुड्स रिजेक्ट किए हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उस हिसाब से गुड्स उसे डिलीवर नहीं हुए हैं। सो बायर हैज रिजेक्टेड द गुड्स एंड रिवोक्स एक्सेप्टेंस। मतलब बायर ने सेलर को बता भी दिया है कि भाई जो तुमने गुड्स मुझे डिलीवर किए हैं वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं वो गुड्स को रिजेक्ट कर रहा हूं, एंड आई एम रिवोकिंग द एक्सेप्टेंस। मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं, सो आई एम रिवोकिंग द एक्सेप्टेंस। क्लियर है? तो अगेन यहाँ पर वापस से गलती किसकी होती है, गलती यहाँ पर इन तीनों केसेस में सेलर की होती है। व्हाई? बिकॉज ही इज द डिफॉल्टिंग पार्टी। क्लियर है? अब हमने गलतियां तो देख ली है ना, वी हैव सीन व्हाट इन हाउ द सेलर विल बी लायबल, है ना, कि उसकी गलती क्यों होती है, व्हाई ही बिकम्स द डिफॉल्टिंग पार्टी। सो देयर हैव बीन 3 रीजंस व्हिच हैव बीन गिवन, वेर ही फेल्स टू डिलीवर द गुड्स, where he is repudiating the contract, and where he delivers. But what is he delivering? Non-confirming goods। जो बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया था उस हिसाब से गुड्स है ही नहीं, तो फिर मतलब ही क्या हुआ डिलीवर करने का, राइट? अब नेक्स्ट पेज पे देखो, अब मैंने आपको क्या कहा था, वहां पर गलती किसकी थी, सेलर इज द डिफॉल्टिंग पार्टी। तो जो राइट्स अवेलेबल होंगे वो किसके लिए, किसके फेवर में राइट्स अवेलेबल होंगे, राइट्स ऑफ द बायर। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो जो डिफॉल्टिंग पार्टी होती है, ओके, तो द पर्सन हु कॉजेज द डिफॉल्ट टू द अदर, सो दिस अदर becomes the suffering party and hence there are rights which are available for the suffering party। तो यहाँ पर if seller is the defaulting party, who becomes the suffering party? The buyer। the buyer becomes the suffering party। तो जो suffering party होती है उसके लिए ही राइट्स अवेलेबल होते हैं। सिंपल सी बात है ना, जो सफर करेगा उसे ही राइट्स मिलेंगे, करेक्ट? तो अब हमें कुछ राइट्स पढ़ने हैं विच आर इन फेवर ऑफ द बायर। अब देखो, अगर एक वापस से शॉर्ट वाला रिवीजन किया जाए, जो राइट्स इन रेम है या जो राइट्स इन पर्सोनम है, ये दोनों राइट्स किसके लिए अवेलेबल हैं? बोथ दीज राइट्स आर अवेलेबल टू द अनपेड सेलर। तो ये जो सेट ऑफ राइट्स हमने पढ़े, फिर वो रेम हो या पर्सोनम हो, both these rights are for whom? in favor of the seller and sorry unpaid seller। ठीक है, अब जो हम राइट्स पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए हैं, वो बायर के राइट्स हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट 4 है इसमें आपने दोनों पार्टीज के तरफ से राइट्स आपने देख लिए हैं। अब तक हमने सेलर के राइट्स कंप्लीट किए हैं। नाउ विल क्विकली अंडरस्टैंड द राइट्स विच आर अवेलेबल फॉर द बायर। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। मतलब यहां पर सेलर ने डिलीवर ही नहीं किए हैं गुड्स, यहां पर तो बायर इज विलिंग टू एक्सेप्ट एंड विलिंग टू पे, बट सेलर ने गुड्स ही डिलीवर नहीं किए हैं। तो अगेन यहाँ पर डिफॉल्टिंग पार्टी कौन हो गया, सेलर हो गया, राइट? और यहाँ पर देखो सेक्शंस कंटिन्यू हो रहे हैं, सेक्शन 57, लास्ट सेक्शन जो हमने पढ़ा था दैट वाज 56। ओके, सो यहाँ पर सेक्शंस कंटिन्यू हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर सेलर गुड्स डिलीवरी नहीं कर रहा है, तो उस केस में बायर विल क्लेम फॉर डैमेजेस। देखो क्या लिखा है, वेयर द सेलर wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages। the buyer may sue the seller for damages, क्योंकि यहाँ पर गलती किसकी है, सेलर की गलती है, राइट? तो यहाँ पर sue कौन करेगा, the buyer will sue the seller for the damages for non delivery of goods। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लो क्विकली, देखो अगर आपको समझता है तो, रीड इट ऑन योर ओन।
if you have read the example, let us say A, B and C. तो A B को shoes deliver करने वाला था for what rate? 1050 per shoe, correct? Per shoe, per pair of shoe. Or B had an agreement with C and B was selling it to C at what rate? On due date, A failed to deliver the shoes to B. B could not perform the contract with C for the supply of 100 pair of shoes. In this case, अच्छा यहाँ पर रेट क्या था? 1100. तो यहाँ पर डिफरेंस कितना था? यहाँ पर B को कितना घाटा हो गया? So on the due date, A did not perform the contract with B. और B का आगे कॉन्ट्रैक्ट था C के साथ फॉर 1100 पर पेयर ऑफ शू. तो यहाँ पर B का कितना घाटा हो गया? 50 पेयर पर शू, ₹50 per pair of shoe, correct? So in this case, A will give damages to B at what rate? At ₹50 per pair of shoe. तो जो डिफरेंस आता है ना, जो मुनाफा था B का, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इजीली स्मूथली कंडक्ट होता तो B को कितना प्रॉफिट हुआ रहता? B would have got ₹50 per pair, ओके, क्योंकि वो C को क्या रेट लगा रहा था? 1100 और वो खरीद रहा कितने में था? 1050 में, करेक्ट? तो क्या लिखा है? In this case, B can recover damages from A at the rate of 50 per pair. That is the difference between the contract price and the resale price. यहाँ पर contract price कितना था? 1050 और रीसेल प्राइस कितना था? 1100, करेक्ट? तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना, क्या होता? ये ₹50 टेक्निकली क्या होता? ₹50 वुड हैव बीन द प्रॉफिट बी का, है ना? अगर ये पूरा ट्रांजैक्शन स्मूथली जाता, अगर ए बी को सेल करता, फिर बी भी फर्दर सेल करता सी को, सो टेक्निकली ₹50 वुड हैव बीन द प्रॉफिट किसका? बी का. बट अब तो ए ने डिलीवरी नहीं किए गुड्स, ए ने डिफॉल्ट किया, so then B is liable to recover damages at ₹50 per pair of shoe from Mr. A. ठीक है? तो यहाँ पर डिलीवरी नहीं हुई, करेक्ट? डिलीवरी नहीं हुई तो बी ने भी आगे परफॉर्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, या रादर नहीं कर पाया. ठीक है? सो दिस इज सेक्शन 57. 58 देखो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. नाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तो हमने काफी बार चर्चा की है. व्हेन इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एप्लीकेबल? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब एप्लीकेबल होता है? जब वी आर स्पीकिंग ऑफ रेयर कमोडिटीज, है ना? जैसे हम ऑक्शन सेल में हमने देखा है कि ऑक्शन किन का होता है? रेयर कमोडिटीज का, विच आर प्रेशियस, है ना? जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं है ना? तो आज जाकर अगर मैंने एक पेंटिंग खरीदी विच इज अ रेयर पेंटिंग, और उसके बाद सेलर इज नॉट रेडी टू गिव मी द पोजेशन ऑफ दैट पेंटिंग, है ना? तो वो मुझे बोलता है दैट आई विल गिव यू 1 crore बट फॉरगेट दिस पेंटिंग, है ना? सो इवन इफ दैट पेंटिंग इज जस्ट से ऑफ ₹20 lakhs फॉर एग्जाम्पल, एंड इज रेडी टू गिव मी 1 crore, सो इन दिस केस damages is not a remedy to me. फिर भले वो damages 3 गुना क्यों ना हो, 4 गुना क्यों ना हो, because I will not be satisfied with that amount of money. The only thing which will satisfy me is that particular product. तो मैं कोर्ट में जाके I will, sue the seller in what name? For specific performance, because in that case the court will understand, okay, that I need that particular painting only. No amount will satisfy me, or no amount will compensate me. No amount of damages I'm ready to accept. Okay, so this is section 58. Let us read it. क्या लिखा है? Where the seller commits a breach of contract of sale, the buyer can appeal to the court. ये important है for specific performance. The court can order. कोर्ट क्या इश्यू करेगा? तो कोर्ट will order for specific performance only when goods are ascertained or specific. अब एग्जाम्पल पढ़ोगे तो समझ आएगा. Mr. A agreed to sell, I'll write down, Mr. A agreed to sell a rare painting of Mughal period to Mr. B. तो यहाँ पर B कौन है? B is the buyer, A is the seller. ठीक है? On the due date of delivery, देखो क्या हुआ? On the due date of delivery, A refused to sell the same. A ने मना कर दिया कि भाई पेंटिंग को भूल जाओ. In this case, B may file a suit against A for obtaining an order
from the court to compel A to perform the contract. मतलब B किसकी help जाके लेगा? B will seek the help of the court and court will issue an order for specific performance और court pressurize करेगा A को. यहाँ पर word क्या लिखा है? The court will compel A to perform. Compel मतलब to put a pressure, okay, in an uncertain way. To put a pressure on A that you have to perform this contract. आप 1 करोड़ का 2 करोड़ भी दोगे ना तो भी B accept नहीं करेगा. B because B wants that painting because it is rare and of Mughal period. ठीक है. So word specific performance is used for rare articles जहां पर no amount of damages will satisfy the suffering party. क्लियर है सबको? So this is section 58. 59 देखो, sued for breach of warranty. Let us read. इसको important mark कर लो. Where there is a breach of warranty. अच्छा, हम सबको पता है कि अगर हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लें पहले, तो जब breach of condition होता है तो रेमेडी अवेलेबल क्या होती है बायर को? He will cancel the contract, है ना? Wherever there is a breach of condition, ये मैं यूनिट 2 की बात कर रही हूँ. जब भी कोई कंडीशन ब्रीच हो जाता है तो रेमेडी अवेलेबल क्या होती है कि बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा. जब भी देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू द बायर? ही कैन मियरली क्लेम डैमेजेस. करेक्ट. यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी. ठीक है. दिस इज नॉर्मल डिस्कशन विच वी हैव ऑलरेडी सीन. अब इसके हमें आगे देखना है क्या लिखा है ब्रीच ऑफ वारंटी में. Okay, section 59, where there is a breach of warranty on part of the seller or where the buyer elects to treat the breach of condition as breach of warranty, है ना? कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि होता है breach of condition, है ना? But the buyer elects to treat it as equal to breach of warranty, है ना? ये हमने पढ़ा भी है. जहां पर आपका यूनिट 2 में एक डिफरेंस दिया था 3 पॉइंट्स का, उसके नीचे लिखा था वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी. करेक्ट. जिन्होंने पढ़ा है उन्हें कनेक्ट होगा. तो उन केसेस में देखो क्या होगा, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी और देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बट यू आर ट्रीटिंग एज वारंटी. ठीक है. आगे, द बायर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, है ना? क्योंकि हमने ब्रीच ऑफ वारंटी में रेमेडी क्या पढ़ी थी कि आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो. और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे होता है? गुड्स को रिटर्न देके. तो देखो यहाँ पर लिखा क्या है, द बायर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, है ना? बायर के पास ये रेमेडी नहीं है कि आप गुड्स को रिटर्न कर दो या रिजेक्ट कर दो जस्ट बिकॉज देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी. तो ब्रीच ऑफ वारंटी में रेमेडी अवेलेबल क्या होता है कि दैट यू कैन मियरली क्लेम डैमेजेस, नथिंग मोर देन दैट. यू कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स, है ना? तो उस केस में देखो, उस केस में 2 ऑप्शंस मिलते हैं. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सच ब्रीच ऑफ वारंटी बट ही में, है ना? तो आप अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाता है तो बायर क्या करेगा? बायर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स. बट ही में मतलब आगे और एडिशनल राइट्स हैं. देयर आर 2 राइट्स और ये 2 राइट्स एंड नहीं है, यहाँ पर वर्ड और लिखा है. तो अगर आप ये वाला राइट चूज करते हो तो ये वाला लैप्स हो जाता है और वाइस वर्सा. ठीक है. अब देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, बट ही में, ही मतलब कौन? बायर की बात कर रहे हैं. ठीक है. सेटअप अगेंस्ट द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन ऑफ प्राइस. मतलब क्या? अगर सेलर और बायर के बीच में एक अग्रीमेंट बना है जहां पर सेलर इज सेलिंग द गुड्स टू द बायर फॉर ₹100 एंड देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय सेलर, है ना? ये एग्जीक्यूशन, ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले सेलर के तरफ से देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ वारंटी. तो इस केस में बायर उसे क्या बोलेगा कि भाई अब तेरे तरफ से तो यू हैव ब्रीच्ड वन इम्प्लाइड वारंटी, है ना? तो अब जो हमने प्राइस फिक्स किया है ना कॉन्ट्रैक्ट में, अब इसको तुम रिड्यूस करो. अब तुम मुझे 70 रुपीज में सेल करना, क्योंकि फर्स्टली देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ वारंटी फ्रॉम योर साइड, है ना? तो अब आई विल ओनली कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड, जो हमने 100 फिक्स्ड किया है ना कॉन्ट्रैक्ट में,
that is the price of the product. Now you reduce it to rupees 70. तो क्या लिखा है? The buyer will set up against the seller for the breach of warranty in the extinction of the price. तो अब जो contract price है ना, आप उससे अब reduce कर लो. तो the seller will have to reduce this price. अगर उसे भी contract को continue करना है तो ये contract को execute करने से पहले ही there is a breach of warranty by the seller. तो अब बायर क्या बोलेगा कि फर्स्टली तो तुम्हारे तरफ से ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना, अब तुम उसे रिड्यूस कर लो. सो ही विल फाइट फॉर दैट. द बायर विल फाइट फॉर द डिमिनिशन ऑफ प्राइस. ओके, बिकॉज ही विल से कि भाई फर्स्टली यू हैव ब्रीच्ड, तो अब तो तुम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कम करो, बिकॉज नाउ आई विल नॉट पे ₹100. फर्स्टली यू हैव ब्रीच्ड, है ना, तो नाउ यू हैव टू रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टू ₹70. ठीक है. और दूसरा ऑप्शन क्या है बायर के पास? sue the seller for damages for breach of warranty. तो इन शॉर्ट क्या कह रहे हैं? या तो आप डैमेजेस क्लेम कर लो, सिंपल सी बात है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कम कर लो. सिंपल. आई हैव सिंप्लीफाइड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. आई हैव सिंप्लीफाइड सेक्शन 59. तो जब भी ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो हमने यूनिट 2 में क्या पढ़ा है कि बायर विल क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द सेलर. सिंपल सी बात है. बस यहाँ पर आपको एक एडिशनल चीज क्या दी है, आपको चाहिए तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, या तो डैमेजेस क्लेम ना करने से आप कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ही रिड्यूस कर लो. बात एक ही है ना. ईदर यू टेक ₹30 एक्स्ट्रा, ईदर यू रिड्यूस ₹30 फ्रॉम योर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. बात एक ही है ना. या तो आप ₹30 ले लो उनसे एडिशनली, या तो आप ₹30 कम कर लो. राइट. सो यू हैव बीन गिवन an option in case of breach of warranty, either claim damages or reduce the contract price, है ना. अब look at the last section. Again ये repetitive है तो ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा. Suit for interest. We have already seen this कि या तो जो contract में लिखा होगा वो interest rate लेंगे, या तो फिर जो court decide करेगा वो ले लेंगे. पढ़ लो ये पॉइंट खुद से, एंड देन वील स्टार्ट विद ऑक्शन सेल. लेट अस स्टार्ट विद ऑक्शन सेल, द लास्ट टॉपिक. ओके, नाउ व्हाट इज ऑक्शन सेल? एवरीबडी ऑफ यू ऑल नो, राइट. जो रेयर कमोडिटीज होते हैं उनको हम ऑक्शन सेल में सेल करते हैं. देयर आर बिडर्स हु बिड एंड द हाईएस्ट बिडर इज गिवन दैट प्रोडक्ट. ठीक है. Let us read the introduction. An auction sale is a mode of selling property by inviting bids publicly, and the property is sold to the highest bidder. Correct? An auctioneer is an agent governed by the law of agency. तो जो auctioneer है, जो ये पूरा auction sale को conduct करता है ना? And also, if you remember, I told you, at suppose auction, जो auctioneer होगा, वो finalize कैसे करेगा? He will से सपोज एक बायर है जिसने 100 बोला है एंड ही इज द हाईएस्ट बिडर. फॉर एग्जांपल दे रही हूँ. ठीक है. उसने 100 बोला है, ही इज द हाईएस्ट बिडर. अब उसके बाद कोई बिड ही नहीं कर रहा है, तो ऑक्शनर क्या करेगा? कैसे क्या कहता है? ही से गो गॉन, या तो कहेगा गोइंग गॉन, या कहता है गो गॉन, है ना. तो ये थर्ड के बाद जब ये थर्ड वर्ड अटर करेगा ना, व्हेन ही विल से गॉन, उसके बाद नोबडी कैन बिड एंड द प्रॉपर्टी हैज बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड टू दिस हाईएस्ट बिडर, है ना. एंड ऑन द फॉल ऑफ हैमर, तो ये कहेगा गो या गोइंग गॉन, एंड व्हेन ही विल से गॉन, ही विल देयर इज अ फॉल ऑफ हैमर बाय द ऑक्शनर. ठीक है. एंड व्हेन देयर इज अ फॉल ऑफ हैमर बाय द ऑक्शनर, द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द हाईएस्ट बिडर. ठीक है. तो ये प्रोसीजर होता है. अब रूल्स ऑफ ऑक्शन देखो. So section 64 of SOGA provides following rules to regulate the sale by auction. Where goods are sold in lots, where goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be a subject of separate contract of sale. तो अब हो सकता है कि एक सोफा सेट है ना. तो सोफा सेट में there is a sofa, there are 2 chairs, okay, there is 1 table, but auctioneer को ये तीनों चारों
को अलग अलग से बेचना है. He does not want to sell it as a complete sofa set. He wants to sell it as one sofa. Then there are two chairs and there is one table, wooden table. तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक साथ सेल नहीं कर रहा है. ओके, इन केस इफ यू वांट्स टू डू दैट, ठीक है, तो ये कर सकता है. ऐसा नहीं होगा कि भाई ये तो एक सोफा सेट है तो आपको बेचना है तो आप इसे एक ही बिडर को सेल कर सकते हो. सो ही इज कीपिंग द एंटायर सोफा सेट इन सेपरेट लॉट्स. वन लॉट इज अ सोफा, फिर एक लॉट है वो दो वुडन चेयर्स एंड देयर इज वन अनदर लॉट ऑफ वुडन टेबल. ठीक है, तो अगर वो ऐसा चाहे तो वो ऐसा भी बेच सकता है. देयर इज एन ऑप्शन. पॉइंट 2 देखो, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो पता कैसे चलेगा कि ऑक्शन खत्म हो गया है? क्या लिखा है? द सेल इज कंप्लीट व्हेन, कब खत्म होगा सेल? When the auctioneer announces its completion by the fall of hammer, है ना? तो when the auctioneer will bang, okay, when there is a fall of hammer by the auctioneer, तब माना जाता है कि ऑक्शन सेल कंप्लीट हो चुका है ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. ओके, और यहाँ पर और है, और बाय एनी अदर कस्टमरी मैनर, है ना? तो जरूरी नहीं कि हैमर ही होना चाहिए, कुछ कोई और तरीके से अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहते हो तो भी चलेगा. ठीक है, so either by fall of hammer or by any other manner. Okay, so there's been an option which is available. So when does then auction sale get completed or the fall of hammer or by any other customary manner? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड. ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो. राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली और ऑन बाय बिहाफ ऑफ द सेलर, एंड वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड, द सेलर और एनी वन पर्सन ऑन हिज बिहाफ में बिड एट द ऑक्शन. मतलब क्या, अब वहां पर जो सोफा पड़ा हुआ है ऑफ द मुगल पीरियड, अगर मैं से बात करती हूँ, या अगर कोई ऐसी पेंटिंग है विच बिलोंग्स टू द मुगल पीरियड, तो वो पेंटिंग मेरी है, मैं ऑक्शन में लेके आई हूँ, आई एम द ओनर ऑफ दैट पेंटिंग. तो जो हाईएस्ट बिडर बिड करेगा वो पैसे किससे पे करेगा? ही विल पे द प्राइस टू मी. तो कई बार ऐसा होगा कि अगर पेंटिंग मेरी है ना, तो मैं भी बिड करूंगी, इवन आई विल बिड फॉर द पेंटिंग. तो क्वेश्चन ये आता है कि जब पेंटिंग ही मेरी है तो मैं बिड कर क्यों रही हूं? सिंपल सी बात है, जस्ट टू इंक्रीज द प्राइस. ऑब्वियसली है ना, इफ दिस पेन बिलोंग्स टू मी एंड इफ आई हैव केप्ट इट ऑन दैट टेबल एंड एवरीबडी इज बिडिंग, और मैं भी बिड कर रही हूँ, है ना, तो व्हाई एम आई बिडिंग देन? इफ दिस पेन इज माइन ओनली, देन व्हाई एम आई बिडिंग? सिंपल सी बात है, जस्ट टू हाइक द प्राइस. ठीक है, यस. तो ये क्या लिखा है? लेट अस रीड अगेन. राइट टू बिड में भी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली. एक्सप्रेसली का मतलब क्या होता है कि अगर मैं भी बिड करती हूं तो वहां पर जो सारे बिडर्स हैं उन सबको पता होगा कि मैं कौन हूं. Everybody knows that even I am a part of this auction sale and even I am a bidder. So they know that I am also bidding. So यहाँ पर अगर आपको ये राइट को एक्सरसाइज करना है, so you have to exercise it expressly. You have to make sure that all the bidders over there are aware that this product belongs to you and you are also a part of the number of bidders. तो सबको पता है कि ये कमोडिटी आपकी है, बट फिर भी आप बिड कर रहे हो. ऐसा ना हो कि उनको पता ही नहीं हो. ठीक है, एंड वन सिंपल थिंग, व्हाई डू पीपल डू दिस? जस्ट टू इंक्रीज द प्राइस. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? वेयर सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर. अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर ये पेन मेरी है और मैं भी बिड कर रही हूं, तो वहां पर जो सारे बिडर्स है ना, मुझे उन्हें एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा कि भाई मैं भी बिड कर रही हूँ. मतलब मुझे उन्हें ये इंटीमेट करना पड़ेगा. I have to make sure that all the bidders over there, they know that I am also a part of the auction sale, that I am also bidding. पर जहां पर मैंने उन्हें नहीं बताया, कि भाई this pen belongs to me and I am also bidding, जहां पर मैंने उन्हें ये नोटिस नहीं दिया, वहां पर देखो क्या होगा. It will not be considered to be a valid sale. That's it. It will be considered to be a fraud sale. उससे हम वैलिड सेल नहीं मानेंगे जहां पर मैंने उन्हें नोटिफाई नहीं किया है दैट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑक्शन सेल. ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखो, रिजर्व्ड प्राइस. द सेल में बी नोटिफाइड सब्जेक्ट टू अ रिजर्व और एन अपसेट प्राइस. मतलब क्या?
जो ऑक्शनर होगा, एंड सपोज आई एम द ओनर ऑफ ऑल द गुड्स विच आर केप्ट ओवर देयर, तो मैं ऑक्शनर को इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि जब भी वो पेंटिंग की बात होगी तो यू हैव टू एक्सेप्ट द बिड्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 crore। तो जिससे भी बिड करना है यू हैव टू बिड ओवर एंड अबव 1 crore। कोई भी 50 lakhs से स्टार्ट नहीं करेगा, कोई भी 60 lakhs का बिड नहीं देगा। इफ यू वांट टू बिड यू हैव टू स्टार्ट बिडिंग फ्रॉम 1 crore। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एज अ ओनर ऑक्शनर को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जो भी आप बिड्स एक्सेप्ट करोगे पब्लिक से regarding this particular painting, make sure the bids which you accept they start from 1 crore। they start from 1 crore। ठीक है, इसे हम रिजर्व प्राइस को बेस प्राइस भी कहते हैं। एंड द लास्ट इज pretended bidding। if the seller makes use of pretending bidding to raise the price, it is considered to be avoidable at the option of the buyer। अब सुनो, अब वहां पर जो सारे कमोडिटीज पड़े हुए हैं वो मेरे हैं, बट मैं भी बिड कर रही हूं, तो मैं टेक्निकली बिड क्यों करूंगी? जस्ट टू रेज द प्राइस। बट यहाँ पर उन्होंने लॉ में एक प्रोविजन दे दिया है कि आप अगर पर्पसली सिर्फ इसलिए ऑक्शन सेल में पार्ट ले रहे हैं या आप इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं जस्ट टू रेज द प्राइस, तो उसे हम वॉइडेबल मानेंगे। तो बात यह है कि लॉ में एक प्रोविजन दे दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंटेंशन तो वही रहता है टू पार्टिसिपेट इन द इंटायर बिडिंग प्रोसेस जस्ट टू रेज द प्राइस, है ना। तो बस इंटेंशन वो रहता है, बट एक उन्होंने प्रोविजन दे दिया है कि भाई मेक श्योर कि आप इसलिए पार्टिसिपेट ना करो। पॉइंट ये है कि अगर इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करना है तो फिर किस लिए पार्टिसिपेट करेंगे, वो तो इन्होंने बताया ही नहीं है। ठीक है, तो इट मेक्स नो अदर सेंस दैट इफ आई एम ओनली द ओनर ऑफ द गुड्स एंड आई एम ओनली बिडिंग, तो प्राइस रेस करने के अलावा मेरे पास और क्या इंटेंशन होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट। सो द ओनली रीजन आई हैव टू पार्टिसिपेट इन द बिडिंग इज टू रेज द प्राइस। अब इन्होंने यहाँ पर लास्ट पॉइंट में क्या कह दिया है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिटेंडेड बिडिंग, और इसे हम वॉइडेबल मानते हैं। तो बात टेक्निकली ये है, प्रैक्टिकली ये है कि भाई इसके अलावा तो और कोई ओनर के पास और कोई इंटेंशन भी नहीं होता है खुद के ही ऑक्शन सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, सो देयर इज नो अदर रीजन ऑल्सो। एंड ये जो लास्ट में एग्जांपल दिया हुआ है इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये केस फॉर्म में आ सकता है। लेट अस रीड, क्या लिखा है, पी सोल्ड अ कार बाय ऑक्शन, इट वाज नॉक डाउन टू क्यू। तो क्या मानेंगे कि यहाँ पर मिस्टर पी इज द ऑक्शनर, है ना, और क्यू इज द हाईएस्ट बिडर, है ना। तो क्यू को वो was cleared। In the meanwhile, till the check was cleared, Q sold the car to R। It was held that the property was passed on the fall of hammer and therefore R had a good title to car। मतलब क्या, अब हमने ऐसे समझ लिया that P is a auctioneer, Q is the highest bidder, और Q को क्या मिला है, Q is the highest bidder of a car। तो P ने कैसे कैरी फॉरवर्ड किया होगा ये ऑक्शन सेल को, P ने कहा होगा गोइंग गोइंग गॉन, एंड उसने ऑन द फॉल ऑफ हैमर द ऑक्शन सेल वाज कंप्लीटेड। और मैंने आपको क्या कहा, व्हेन देयर इज अ फॉल ऑफ हैमर द प्रॉपर्टी सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड टू द हाईएस्ट बिडर। अब हुआ क्या कि जब ये कंप्लीट हो गया ऑक्शन सेल, तो ऑक्शनर ने क्यू को कहा कि भाई आपको कार का ओनरशिप तब मिलेगा जब आप हमें चेक दे दोगे। ठीक है, कब ओनरशिप मिलेगा, जब आप हमें चेक दे दोगे। तो क्यू ने चेक दे दिया, पर जब तक वो चेक क्लियर हो, जब तक वो चेक ऑनर हो, तब क्यू ने वो कार आर को रीसेल कर दी। क्या कर दी, मैं वापस से रिपीट करती हूँ, जब तक वो चेक क्लियर हो तब तक क्यू ने वो कार को आर को सेल कर दी। ठीक है, अब तक मतलब चेक क्लियर हुआ भी नहीं है और पहले ही क्यू ने वो कार आर को ट्रांसफर कर दी। क्वेश्चन ये है कि क्या ये अलाउड है, इज दिस अलाउड? द आंसर इज यस,
because the ownership was already been transferred to Q when on the fall of hammer. तो check clear हो या ना हो या कब हो, XYZ, this is immaterial. The ownership has already been transferred to Q on the fall of hammer. So rather, hammer on the fall of hammer, Q becomes the good title owner. तो उसके बाद अगर वो किसी और को थर्ड पार्टी को सेल भी करता है ना, that transaction is valid. मतलब ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ना Q और R के बीच में, this is a valid sale transaction. So आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि Q should have waited जब तक चेक क्लियर होता उसके बाद वो किसी और को सेल करता. So Q के पास अगर ओनरशिप आ गई है, गुड टाइटल आ गया है, तो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है. और गुड टाइटल कब आया? ऑन मियर फॉल ऑफ हैमर. तो एक बार देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है. It was held that property was passed on the fall of hammer and therefore R had a good title to car. तो जब Q ने इसे सेल किया तो R को भी गुड टाइटल मिल गया. Both sale and subsale are valid in favor of Q and R. ठीक है, तो ये ऑक्शनर ने जो Q को सेल किया और Q ने फर्दर सबसेल किया, so this sale and this subsale both are considered to be valid. ठीक है, तो Q को इंतजार नहीं करना है कि भाई चेक कब क्लियर हो उसके बाद ही मुझे परमिशन है फर्दर सेल करने की. नहीं, Q कैन इमीडिएटली रीसेल इट ऑन द फॉल ऑफ हैमर, क्योंकि क्या माना जाता है that it was the property was passed on the fall of hammer. तो जैसे ही immediately when there was fall of hammer, the ownership was transferred to Mr. Q. ठीक है, उसके बाद he can sell it. He does not have to wait till the check has been honored. ठीक है, I hope you all have understood the remaining part of this particular unit जो pending था. ठीक है, keep revising all the units. जैसे ही आपको डाउट आ जाता है, you can ask me anytime. Okay, I am available on calls and WhatsApp, whatever you feel convenient. ठीक है, let me know if you have any doubts, we can clear them.